Okay, welcome back. Um, did you have a good break? क्या आपको अच्छा ब्रेक मिला? Yes. Okay. You're feeling a little fresh? क्या आप थोड़ा तरोताजा महसूस कर रहे हैं? A little bit. Okay. All right. This is the last session. ये अंतिम भाग है. Yay. ए- ए- Last session only for the first half. तो फर्स्ट हाफ के लिए लास्ट सेशन रहेगा, Okay. There's also second half. फिर सेकंड हाफ भी रहेगा. So all the best. सबको ऑल द बेस्ट. Okay. Let's continue with where we left. तो आइए हम फिर से चलते हैं जहाँ पे हम लोगों ने समाप्त किया था. I'm going to keep repeating a lot of points. तो मैं बहुत सारी बातों को दोहराता रहूंगा That is simply to reiterate the importance of it. ताकि हम अब उसके महत्व को समझ सकें. Okay. So please forgive me if I'm too repetitive. अगर मैं ज्यादा दोहरा रहा हूँ तो मुझे आप क्षमा करें, It's simply for us to help us understand. ताकि ये इसलिए है कि हम उसे अच्छी तरह से समझ पाए. Okay. So we learned 4 points on what worship was. तो हम लोगों ने चार बातों को देखा कि आराधना क्या है. Let's quickly learn आइए हम जल्दी से सीखें what happens when we worship. तो क्या होता है जब हम आराधना करते हैं. Okay, what है? happens when we worship? तो क्या होता है जब हम आराधना करते हैं. So the first thing, तो पहली चीज है, okay, before we go into what I think, what do you think happens when we worship? तो जब हम आगे बढ़ते हैं उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब हम आराधना करते हैं तो क्या होता है. लॉर्ड स्पिरिट कम्स डाउन. Okay, the spirit comes down. Okay, thank you. धन्यवाद. So when they worship, they can understand what God's want is to do, God's heart. What his desire, what he wants. We okay. So when we worship, his presence comes down. When we worship, we understand his will, his desire for us. जब Okay, हम आराधना करते हैं तो उसकी उपस्थिति आती है, हम उसकी इच्छा को जान पाते हैं. and what else? और क्या? Revelation. Okay, there's a revelation of who he is. तो परमेश्वर के बातों को उसका प्रकाशन होता है. और सर बंधन टूट जाते हैं. ग्लोरीफाई गॉड. We glorify. परमेश्वर की Okay. महिमा करते हैं. No, yeah, okay. All that is great. My question still remains. What happens when we worship? तो वो सारी बातें जो हमने कही वो बहुत अच्छी है, लेकिन मेरा जो प्रश्न है वो यह है कि जब हम आराधना करते हैं तो क्या होता है. All your answers are correct, by the way. आपकी जो भी आपके उत्तर हैं सब सही है, All right, there's no wrong answer. तो कोई गलत उत्तर नहीं है. But I want you to think. तो मैं चाहता हूँ कि आप परमेश्वर सोचें की उपस्थिति होता है. और सोच के बताएं. परमेश्वर की उपस्थिति होता है. When we pray, we talk to God. You can talk loudly. Yeah. When we pray, we talk to God. Okay, when we Worship. pray, we talk to God. Okay. Someone this side said something. Okay. Heavenly realms open. Relationship with God is more deeper. Okay, our relationship with Him increases, goes deeper. All right. Great. All right. कोई Answer. उत्तर? Amazing. eh? बहुत. Heavenly Okay, realms open. we have His peace. All right. Okay, so we have His peace. His peace enters our hearts. Okay, what else? We get to know His desires for our lives. His presence comes down. His Spirit comes down. Okay, our relationship with Him goes deeper. We glorify Him. And yes, sister. We get healing and deliverance. Okay, we get healing and deliverance. Amazing. There's one batch over there which is very quiet. That section there. वहाँ पे एक भाग बैच है And जो then this- काफी चुप है, And then this section over here after the second row is very, very quiet. और यहाँ पे जो दूसरा रो है उसके बाद काफी शांत है, And that section over there is completely quiet. और वहाँ पे जो भाग है वो पूरी रीति से चुपचाप है. Okay, I'm watching. मैं देख रहा हूँ सबको. Okay, I can see everybody. Okay, मैं सबको देख रहा हूँ यहाँ से. all right. So I will take one cordless mic and I'll come to you next. अब क्या करूंगा, मैं कॉर्डलेस माइक लेके आपके पास आ जाऊंगा. Okay, so all your answers are great. All your answers are right. तो You आप, know, आपका सारा उत्तर सही है, आपने जो कहा वो सब सही है. okay, there's so many things that happens when we worship Him. तो बहुत सारी बातें होती हैं जब हम उनकी आराधना करते हैं. We will learn about 3 simple truths. तो हम लोग एक 3 सरल सच्चाई को सीखेंगे About the power of worship आराधना की सामर्थ्य के बारे में, and what happens when we worship. और क्या होता है जब हम आराधना करते हैं. So the first thing is तो पहली चीज है worship transforms us.
तो पहली चीज है कि जो आराधना होती है वो हमें बदल देती है, right? It changes us. वो हमें बदल देती है। Okay, worship changes us. आराधना हमें बदल देती है। Okay, I've come across a lot of people, मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूं who says जो कहते हैं that after a worship session, और एक आराधना सभा के बाद it'll be either two responses. तो दो उत्तर प्रत्युत्तर होते हैं। I felt great in this time of worship, और मुझे अच्छा महसूस हुआ आराधना के समय, or I didn't feel great in this time of worship. और या फिर मुझे अच्छा महसूस नहीं हुआ। Okay, so आराधना में। तो somewhere कहीं भी we think हम सोचते हैं, that worship is about us. तो हम सोचते हैं कि आराधना हमारे बारे में है। We think हम सोचते हैं that we are the recipient of worship, हमको आराधना प्राप्त होती है, right? But worship is about Jesus. लेकिन आराधना यीशु के बारे में है। Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? Worship is not about how we feel, तो आराधना यह नहीं है कि हम किस प्रकार महसूस करते हैं। right? So I've also had people say, like, see goosebumps, you see, तो हम देखते हैं कि लोग कहते हैं कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। right? So we've reduced worship to how we feel. तो कहीं पे हम लोगों ने आराधना को घटा दिया है, यह कहते हैं कि हम कैसा महसूस करते हैं। And now very popularly, और बहुत ही विख्यात रूप से we've made worship to be only about music, तो हम लोगों ने क्या किया है, आराधना को सिर्फ संगीत से जोड़ दिया है। right? While music is a part of worship, तो संगीत जो आराधना का भाग है, or music or singing संगीत या गीत गाना alone is not worship. वो अकेला आराधना नहीं है, It's one of the aspects or a vessel that we use to worship और God. वह एक प्रकार का भाग है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं परमेश्वर की स्तुति करने के लिए, आराधना करने के लिए। Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? So that's why it's very important for us to understand that worship changes us. तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम समझे कि आराधना हमें बदल देती है, Right? It transforms us. वो हमें बदल देती है We become like the one we worship. और हम उसके जैसा हो जाते हैं जिसकी हम आराधना करते हैं। Okay? We become like the one we worship. हम उसके जैसा हो जाते हैं जिसकी हम आराधना करते हैं। Okay, let's go to Psalm 115. आइए हम भजन संहिता 100 उसका 15वां वचन देखेंगे। Psalm 115, 115. भजन संहिता माफ कीजिएगा 115। Let's read from verse 4 to verse 8. और 115 का 4 से लेकर 8 वचन पढ़ेंगे। Psalm 115, verse 4 to 8. भजन संहिता 115 4 से लेकर 8 तक कोई पढ़े। Till verse 8, 8 please. तक पढ़िए, 8 तक। His mic is not working. उन लोगों की मूर्तें सोने चांदी ही की तो है, वे मनुष्य के हाथ की बनाई हुई है। उनके मुंह तो रहता है परंतु वे बोल नहीं सकते, उनके आंखें तो रहती है परंतु वे देख नहीं सकते, उनके कान तो रहते हैं परंतु वे सुन नहीं सकते, और उनके नाक तो रहती है परंतु वे सुन नहीं सकते, उनके हाथ तो रहते हैं परंतु वे स्पर्श नहीं कर सकते, उनके पांव तो रहते हैं परंतु वे चल नहीं सकते, और अपने कंठ से कुछ भी शब्द नहीं निकाल सकते। जैसी वे है वैसी उनके बनाने वाले हैं, और उन पर सब भरोसा रखने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे। Thank you. धन्यवाद। Okay, such a powerful scripture. ये बहुत ही सामर्थी वचन है। So, verse 8. तो 8वां वचन Verse 8 says, वह कहता है those who make them जो उनको बनाते हैं will be like them, वह उनके जैसा हो जाएंगे, and all who put trust in them. और उन पर जो लोग भरोसा करते हैं। So, it simply says वह यह ऐसा कहता है
they will become like the one they worship. तो वो ऐसा हो जाएंगे जिसकी वो आराधना करते हैं। Right? So if they are worshiping these idols तो अगर वह इन मूर्तियों की आराधना करते हैं that have eyes but cannot see, जिनकी आंखें हैं लेकिन देख नहीं पाते, that have ears but cannot hear, जिनके कान हैं लेकिन सुन नहीं पाते, that has mouth but cannot speak, जिनके मुंह हैं लेकिन वो बोल नहीं पाते, they are dead. वो मरे हुए हैं। So what the Bible is simply saying तो is बाइबल यहाँ पे साफ रीति से बताती है, that if you worship something that is dead, अगर आप उनकी आराधना करते हैं जो मरे हुए हैं, that has जो no मृत life, हैं, that has no life, उनका कोई जीवन नहीं है, people who worship them जो लोग उनकी आराधना करते हैं will become like them. वे उनके जैसा हो जाएंगे। Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? So you see the power of worship, how it transforms us. तो आपने देखा कि किस प्रकार परमेश्वर आराधना करने का जो शक्ति है वो हमें बदल देती है, And how it impacts us. वह कितनी रीति से हमें प्रभावित करती है। Now let's go to another passage of scripture. आइए हम दूसरा भाग पढ़ेंगे वचन से। Exodus 34. निर्गमन उसका 34वां अध्याय, Exodus chapter 34, निर्गमन उसका 34वां अध्याय verse 27 to 30. उसका 24 से लेकर 30 वचन। Okay, Exodus chapter 34, निर्गमन 34वां अध्याय verse 27 to 30. उसका 27 से लेकर 30 वचन तक पढ़ेंगे। और यहोवा ने मूसा से कहा, ये वचन लिख ले, क्योंकि इन्हीं वचनों के अनुसार मैं तेरे और इज़राइल के साथ वाचा बांधता हूं। मूसा तो वहां यहोवा के संग 40 दिन और रात रहा, और तब तक न तो उसने रोटी खाई और न पानी पिया, और उसने उन तख्तियों पर वाचा के वचन अर्थात 10 आज्ञाएं लिख दी। तब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियों हाथ में लिए हुए सीनै पर्वत से उतर आता था। तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थीं, परंतु यह नहीं जानता था उसके चेहरे की किरणें निकल रही हैं। जब हारून और सब इस्राएलियों ने मूसा को देखा कि उसके चेहरे से किरण निकलती है, तब वे उसके पास जाने से डर गए। Great. Thank you so much. Okay, so here we see that Moses हम देखते हैं कि मूसा was in the presence of God वह परमेश्वर की उपस्थिति में था for 40 days and 40 nights. 40 दिन और 40 रातों Right? तक। He didn't eat or drink anything. उसने ना कुछ खाया और न पिया। Okay, so for how many days was he there? कहाँ कितने दिन तक था वो वहां पे? How many days? कितने दिनों तक? 40 days and 40 नाइट। nights, right? So he 40 was 40 in the presence of 40 नहीं God. 40 रात। वह परमेश्वर की उपस्थिति में था, Right? The very presence. और वो बहुत ही उपस्थिति में। The Bible says Moses spoke with God face to face. और बाइबल बताती है कि मूसा परमेश्वर के साथ चेहरे से चेहरा मिलाकर वह बात किया। Actually, it says God spoke with Moses face to face. और यहाँ पे कहा जाता है कि परमेश्वर ने मूसा से बात की थी। Right? In Numbers chapter 12, we read that. जब हम गिनती की पुस्तक उसका 12वां अध्याय पढ़ते हैं, And so, as a result, तो उसका परिणाम स्वरूप as a result of that encounter with God, और उस सामना जो परमेश्वर और मूसा के साथ हुआ, we saw in the previous session how a encounter leads to a response. और हमने देखा कि किस प्रकार परमेश्वर के साथ हमारा सामना प्रत्युत्तर होता है हमारे आराधना का। So, as a result of that encounter with God, और वह परिणाम जो परमेश्वर के साथ सामना होने के बाद होता the है, Bible says the skin on Moses' face was shining. तो बाइबल बताती है कि मूसा के चेहरे से किरणें निकल रही थी, चमक रहा था, And he did not even know it. और वह उसे जान भी नहीं पाता था। Are you with me? क्या मेरे साथ हैं आप? Once again, just being in the presence of God और परमेश्वर की उपस्थिति में रहना has this effect on us और उसका प्रभाव हमारे ऊपर होता है, where it changes us. और वो हमें बदल देता है, Why we become like the one we worship. और हम उसके जैसा हो जाते हैं जिसकी हम आराधना करते हैं। Okay, just two more scriptures let's look at. और दो और वचन हम इसको पढ़ेंगे। देखिए 2 Corinthians दूसरा कुरिन्थियों chapter 3 उसका 3रा अध्याय verse 17 and 18. उसका 17 से लेकर 18 तक। Okay, 2 Corinthians chapter 3 दूसरा कुरिन्थियों उसका 3रा अध्याय verse 17 and 18. 17 से लेकर 18 तक। कोई पढ़े?
And one more scripture you can be ready with is Psalm 34 verse 5. और दूसरा वचन जिसके साथ जिसको आप तैयार कर सकते हैं पढ़ने के लिए, भजन संहिता 34 का 5। दूसरा कोरिन्थियोस 3 अध्याय 17 से 18 तक कोई पढ़े। The Lord is the Spirit, and the Spirit of the Lord is there with we all well faced with the holding the banner of glory, the Lord, being transformed in the same image of the glory to glory, just as by the Holy Spirit. Okay, thank you. Can someone read it to us in Hindi also, please? कोई हिंदी में ही पढ़ सकता है? Thank you. आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है Okay, thank you. So once again, we see that as we behold the glory of God, और हम फिर से देखते हैं कि जिस प्रकार हम परमेश्वर के महिमा को देख पाते हैं, this passage is saying यह भाग कहता है that we are being transformed. तो हम बदल जाते हैं। Transformed into what? तो हम कैसे बदलते हैं? Into the same image, किस चीज में बदल जाते हैं? हम उसी रूप में बदल जाते हैं same image of Jesus, जो यीशु का रूप है, right, from glory to glory, महिमा से महिमा तक, just as by the Spirit of the Lord. it और says. जिस प्रकार परमेश्वर की आत्मा चलाता है। And so, what does it mean in worship? तो आराधना में इसका मतलब क्या होता है? As- इसका अर्थ क्या होता है? As we come before Him in complete surrender, जब हम उसके पास आते हैं पूरी समर्पण के साथ, as we look at Him, जब उसको हम देखते हैं, as we look towards Him, जब उसके तरफ हम देखते हैं, right? David says in Psalm 27, और दाऊद कहता है भजन संहिता 27 में in verse 4 onwards, उसके चौथे वचन के बाद he तक, says, "One thing have I desired of the Lord, एक चीज जो मैंने इच्छा रखी है परमेश्वर से, and that I will seek, ताकि मैं देखूं और खोजूं, that I may dwell in the house of the Lord कि मैं परमेश्वर के भवन में चला फिरा करूं all the days of my life, मेरे जीवन भर, and that I may behold His glory." ताकि मैं उसकी महिमा को देख पाऊं। And so, what happens when we behold His glory? तो क्या होता है जब उसकी महिमा को हम देखते हैं? What happens when we look to Him? क्या होता है जब उसको देखते हैं? We are completely transformed. तो हम पूरी रीति से बदल जाते हैं We begin to look more like Him. और हम शुरुआत कर देते हैं उसके जैसा दिखना, Right? We begin to talk like Jesus did. और हम उनके जैसा बात करना सीखते हैं जैसा यीशु करता था। Right? We begin to, our thoughts are being changed. हमारे विचार बदल जाते हैं। Are you with me? क्या मेरे साथ है? Yes, and that is the goal, isn't it? और यही एक बुलाहट है, Right? That we become more like Jesus here on earth. ताकि हम इस पृथ्वी पर प्रभु यीशु के जैसे हो जाएं, That any person that we come in contact with, और जिस भी व्यक्ति से हम मिले, right, we display the love of Jesus to us. हम परमेश्वर के यीशु के प्रेम को दिखाएं, Right? We treat them as Jesus would. और हम उसको इस प्रकार से व्यवहार करते हैं जैसा कि यीशु करेगा, And that's the impact worship has, और उसका प्रभाव होता है आराधना का, is that we are transformed. तो हम बदल जाते हैं। Okay, second thing, what happens when we worship? और दूसरी बात क्या होती है जब हम आराधना करते हैं? A simple thing, Ankit, right? अंकित, He already said, is that we experience God's presence. तो उसने कह दिया कि हम परमेश्वर की उपस्थिति का एक्सपीरियंस करते हैं, We experience God's presence. हम परमेश्वर की उपस्थिति को प्राप्त करते Now हैं। we'll learn more about the presence of God in a later chapter, और हम बाद में जब हम देखेंगे परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में और सीखेंगे, okay, in detail. और पूरे विस्तार से सीखेंगे। But for now, just know, simply know और अभी के लिए सिर्फ यह जान के रखिए that in worship, कि आराधना में we experience the presence of God. हम परमेश्वर के उपस्थिति को हम प्राप्त करते हैं। In James chapter 4, verse 8, और जब जेम्स के चैप्टर 4 में लिखा हुआ है, the Bible says, बाइबल बताती है, when we draw near to God, जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं He will draw near to us. तो वो हमारे पास आता है। Amen. That's what James Amen. chapter 4, verse 8 इस says. प्रकार वहां जेम्स चैप्टर 4 के 8वें वचन में लिखा गया है। Okay, when we make an effort to get into His presence, और जब हम प्रयास करते हैं उसकी उपस्थिति में आने के लिए, when we tell Him that we are here to worship You, और जब हम कहते हैं कि हम यहाँ पर हैं आपकी आराधना करने के लिए, to honor You, आपको सम्मानित करने के to लिए, adore You, आपको बड़ाई करने के लिए, when we draw to Him, जब हम अपने आप को उनके पास ले जाते हैं He draws to us. तो वो हमारे पास आ जाता है। Okay, so that's the second point, वो दूसरा पॉइंट है। right? In worship,
कि आराधना we में experience the presence of God. हम परमेश्वर की उपस्थिति को मानते हैं, And finally, जान पाते हैं। और जो अंत में है, worship आराधना empowers us to rule and reign. हमको वह शक्ति प्रदान करता है कि हम राज करें। Worship empowers us आराधना हमको शक्ति देती है to rule शासन करने के लिए and to reign. और राज करने के लिए। Okay, let's look at Revelation chapter 1, आइए हम प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय verse 5 and 6. उसके 5वें और 6वें वचन को देखेंगे। Revelation 1, verse 5 and 6. उसका 5वां और 6वां वचन, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वाले में पहला उठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे, जो हमसे प्रेम रखता है और जिसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। उसकी महिमा और पराक्रम युगान युग रहे। आमीन। Amen. Thank you. Let's read one more scripture. आइए हम एक और वचन पढ़ेंगे। 1 Peter पहला पत्रस chapter 2, verse 9. उसका दूसरा अध्याय उसका 9वां वचन। Okay, 1 Peter chapter 2, verse 9. पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय उसका 9वां वचन। कोई भाई आप पढ़े। धन्यवाद। Okay, thank you. Whoever read the scripture. धन्यवाद जिन्होंने वचन को पढ़ा। So, are you all, is everyone following? क्या आप हमारे साथ हैं सब? Okay, give me a big loud yes if you are awake. जोर से एक बार हाँ बोलिए अगर आप जगे हुए हैं। Awesome, thank you. Okay, people who were sleeping are awake now. I was like, oh, what happened? जो लोग सोए हुए थे वो बोल के हो कि क्या हो रहा है यहाँ पे। Okay, thank you. So, Revelation chapter 1, तो प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय 5 and 6, it says, 5 और 6वां वचन में लिखा गया है, right, he washed our sins in his blood. और उसने हमारे पापों को अपने लहू से धोया, Okay, and in doing that, और उसे करने से he has made us और उसने हमें बनाया kings राजा and priests. याजक। Right? He washed us with his blood, उसने हमें अपने लहू से धोया, and in doing that, और उसे करने से he has made us kings हमें वो राजा बनाया and priests. और याजक भी बना दिया। See, as a king, और एक राजा के अनुसार what does a king do? तो राजा क्या करता है? He rules, वह isn't it? शासन करता है या राज्य करता है? Yes or no? हाँ कि ना? That's what a king does. He rules. तो वही एक राजा करता है, वो राज्य करता है या फिर शासन करता है। And what does a priest do? और जो प्रीस्ट होता है वो क्या करता है? याजक क्या करता है? He serves. तो याजक क्या करता है? वो सेवा करता है। Right? A priest serves. और एक याजक सेवा करता है। Right? He takes your offering. वो आपका जो दान है वो लेता है। He performs a sacrifice. और वह बलिदान को करता है। Yeah. Okay, so when Jesus is saying, तो यहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं, with my blood, मेरे लहू से I have cleansed you. मैंने तुम्हें साफ किया है। I have cleansed you to be जिसको आपको साफ किया है इसलिए king कि आप राजा and priest. और याजक। Okay? And in 1 Peter chapter 2, verse 9, और जब पहले पत्रस उसका दूसरा अध्याय उसका 9वां वचन, Peter is writing पत्रस कहता है that we are a chosen generation, तो हम लोग चुने हुए हैं, a royal priesthood. राज पदधारी हैं। Okay, royal again is associated with the word king. और रॉयल का जो है राज पदधारी वह राजा से जुड़ा हुआ है। We say a king, he is from the royal family, isn't it? हम देखते हैं कि जो राजा होता है वो राज्य फैमिली से होता है, परिवार से होता है। Right? A prince or a princess or a queen, we say they are from a royal family. तो जिस प्रकार एक राजकुमार या राजकुमारी या रानी हम जो कहते हैं कि वो राज्य पदधारी है। Okay, so now here's the thing. तो देखिए यहाँ पर एक चीज है, And I want you to pay close attention to और this. मैं चाहता हूं कि आप पूरे ध्यान से देखें। We are called to rule तो हमें बुलाया गया है शासन करने के लिए,
with the heart of a servant. हमें एक दास के रूप में सेवा करने के लिए और दास के रूप में सेवा करने के हृदय से बुलाया गया है। We are called to rule with a heart. This is heart, by the way. हमें बुलाया गया है कि हम एक दास के रूप में सेवा करें, दास के हृदय से सेवा करें। Okay, this is point 1. और ये पहला पॉइंट है। Point 2, I'll write here. और दूसरा पॉइंट मैं यहाँ पे लिखूंगा। Maybe I'll write in red pen. मैं लाल स्याही से लिखूंगा। Okay, so point 1 is we are called to rule with the heart of a servant. तो पहला पॉइंट है कि हम राज करने के लिए बुलाए गए हैं या शासन करने के लिए बुलाए गए हैं एक दास के हृदय से, Right. दास जैसे हृदय से। It doesn't make sense, no? ये कोई मतलब की बात नहीं बनती है। Like you have to rule आपको शासन करना है as a king, एक राजा के रूप में, but with the heart of a servant. लेकिन दास जैसे हृदय से। Be ready to serve. हमें तैयार रहना है सेवा करने के लिए। And then we are called फिर हमें बुलाया गया है to serve सेवा करने के लिए with the heart of a king. और एक राजा के हृदय के से हमें सेवा करने के लिए बुलाया गया है। When you serve, जब आप सेवा करते हैं, we are called to have a heart of a king, हमें बुलाया गया है सेवा करने के लिए एक राजा के हृदय जैसे। a heart that is as big of a king, और एक राजा का हृदय जैसा होता है एक बड़ा हृदय, उस हृदय से हमें सेवा करने के लिए बुलाया गया है। to be generous, हमें दानी बनने के लिए to बुलाया be just, तो हमें धर्मी बनने के लिए बुलाया right? To be ready to serve. ताकि हम तैयार रहें हमेशा सेवा करने के Okay, लिए। what we should understand very clearly, हमें यह साफ रीति से यह समझ लेना है just because we are called to rule as kings, कि हमें बुलाया गया है शासन करने के लिए एक राजा के रूप में, right? We don't start treating people badly. कि हम बुरी रीति से लोगों से व्यवहार करना शुरू ना कर दें। I'm your king, kneel before me. मैं ऐसा नहीं कहना कि मैं आपका राजा हूँ, मेरे सामने दंडवत करो। I'm your pastor, worship me. मैं तुम्हारा पास्टर हूँ, मेरे आराधना करो। I'm your senior, worship me. मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, मुझे आराधना करो। So we rule with the heart of a servant, तो हमें शासन करना है एक दास के हृदय को लेकर, and we serve with the heart of a king. तो हमें सेवा करना है एक दास के हृदय को लेकर। Okay, so 3 simple things what happens when we worship. First one is what? तो 3 चीजें जो होती है जब हम आराधना करते हैं, पहली चीज क्या है बताइए? Worship transforms us. Okay, वर्शिप बदल देता है। थैंक यू। thank you. Second one, दूसरा, in worship we experience the presence of God. हम परमेश्वर की उपस्थिति को जान पाते हैं। And finally, और तीसरा, in worship आराधना में we are empowered to rule and reign. और हमें वो सामर्थ प्रदान होती है कि हम शासन करें और राज करें। Everybody with me? क्या सब हमारे साथ हैं? Okay, great. Can we learn just one more point and we can go home? No, I will go home. तो क्या हम एक और चीज सीख के क्या हम घर जा सकते हैं? नहीं, मैं घर जाऊंगा। One more point can we learn? एक और चीज सीख सकते हैं? Okay, John chapter 4, verse 23 and 24. यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका चौथा अध्याय उसका 23वां वचन। John chapter 4, verse 23 and 24. यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय 23 और 24। Can someone read that, please? कोई पढ़ सकता है हमारे लिए प्लीज? Thank you. So it says, worship Him, worship God in spirit and in truth. तो यहाँ कहता है कि परमेश्वर की आराधना करो सच्चाई और But, आत्मा से। but verse 23 starts off by saying, और 23वां वचन शुरू करता है इस प्रकार, a time is coming एक समय आ रहा है, आता है when true worshippers कि जो सच्चे आराधक हैं, will worship जो आराधना करेंगे the Father in spirit and truth. पिता की आत्मा और सच्चाई से। Okay, so the Father is seeking who? तो पिता किसकी तलाश में है? सच्चा ट्रू वर्शिप। One more time. Who is the Father seeking? पिता किसकी तलाश में है, किसकी खोजता है?
It's very interesting, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है right? The Bible doesn't say कि बाइबल ये नहीं कहती the Father is seeking worship. पिता आराधना को खोजता है, Instead, he's seeking worshippers. इसके बदले में कहता है कि परमेश्वर आराधकों को खोजता है, Because he knows क्योंकि वह जानता है that if he finds worshippers, कि वह अगर जब आराधकों को प्राप्त करेगा, मिलेगा, worship will come by default. और क्योंकि आराधना खुद ब खुद आएगी। Are you with me? क्या मेरे साथ है? Another important point to notice is और दूसरा बहुत महत्वपूर्ण बात जो सोचने की बात है, the Bible says Father is seeking पिता खोजता है true worshippers. सच्चे आराधक को, Okay? True सच्चे worshippers. आराधक। Now, if there are true worshippers, that means there are also have you had a true or false in exams? आपकी परीक्षाओं में ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन आता था? Yes or no? हाँ या ना? Okay. So if the Father is seeking true worshippers, if there are true worshippers, that means there are also false worshippers. तो अगर ट्रू वर्शिपर या सच्चे आराधक हैं, तो फिर फॉल्स वर्शिपर या गलत आराधक भी हैं, They're there. वो लोग हैं। Okay, we'll learn about that in just a minute. तो एक मिनट के बाद उसको भी हम सीखेंगे। Okay, so what does it mean when the Bible says worship him in spirit and in truth? तो किसका क्या अर्थ होता है जब बाइबल बताती है कि उसको आराधना करो आत्मा और सच्चाई में? So it simply means when the Bible says worship him in spirit, तो यह जिसका अर्थ ये होता है कि उसको आत्मा में आराधना करो, we worship him by the power of the Holy Spirit that is living in us. तो हम उनको आराधना करते हैं उस पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा जो हमारे हृदय में है, जो हम में है। Okay, I'll say that one more time. Worshiping God in spirit, परमेश्वर की आराधना आत्मा में, it simply means उसका अर्थ होता है we worship him कि उसको हम आराधना करते हैं by the power of the Holy Spirit पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा that lives in us. जो हमारे अंदर रहता है। Okay, and so in true worship, तो सच्चे आराधना में, सच्चे आराधना में your spirit आपकी आत्मा engages with the Spirit of God. वो परमेश्वर की आत्मा के साथ काम करती है। Amen? आमीन। So that is what it is. And secondly, we worship him in truth. और दूसरी बात है कि हम उसको सच्चाई से आराधना करते हैं। The Bible says, बाइबल बताती है or Jesus says, और यीशु बताता है, I am the way, मैं जो हूँ रास्ता हूँ, I am the सच्चाई, truth, and I am the life. मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन। Okay, so here's a question for you. तो यहाँ पर एक प्रश्न आप लोगों के लिए है, Okay, what is the difference तो क्या जो अलग बात है between truth सच्चाई and facts? और जो तत्व होते हैं उसमें, What is the difference between truth and facts? जो सच्चाई और जो फैक्ट होते हैं या तत्व होते हैं वो क्या होते हैं? Fact मतलब क्या है? What is fact in Hindi? बातें। Fact means anybody? कोई और? संभावना, पॉसिबिलिटीज। Okay. Okay, so we all have smartphone. We all have phone. हमको हमारे पास सबके पास स्मार्टफोन है। Yes. हाँ, Okay, so you all have. We can all see weather forecast. तो हम लोग देख पाते हैं कि आने वाला जो मौसम कैसा होगा। Yes. No. हाँ या ना? Okay. Weather forecast. Okay. So let's say I open the app. I say, okay, weather forecast. I want to see if it's going to rain today or not. तो मैंने ऐप खोला और मैं देखना चाहता हूँ कि एक ऐप में कि आज बारिश होगी क्या नहीं। Okay. So when the weather might say, okay, today evening 5 o'clock it's going to rain. तो वहां पे ऐसा हो सकता है कहा होगा कि आज शाम को 5 बजे बारिश होगी। Okay. It's saying that. वो कहाँ पे कहा गया है? But 5 o'clock comes, 5 बजे जब होती है it doesn't rain. तो वह होता नहीं है, वह बारिश होती नहीं है। Are you with me? आप मेरे साथ हैं? So what the point about fact is, तो जो बातें हैं या जो संभवता बातें हैं, fact can change. तो जो फैक्ट होते हैं वो बदल सकते हैं। Fact can change. जो अनुमान है वो बदल सकते हैं। Okay. For another example, एक दूसरा उदाहरण, the fact is doctor has said
तो डॉक्टर ने अनुमान लगाया, Okay, this is your report. यह आपका रिपोर्ट है, Okay, you have so and so disease. आपका यह या यह रोग है। That is the fact. तो वह अनुमानित किया गया, अनुमान लगाया गया। Okay, the fact is, तो अनुमान यह लगाया गया, woman had an issue of blood for 12 years. वह स्त्री जिसको 12 वर्षों से लहू बहने की का रोग था, The fact is, और वह अनुमान लगाया गया, there was a blind man who was born blind, जो एक व्यक्ति था जो जन्म से ही अंधा था। but the truth is, कि सच्चाई लेकिन यह है, Jesus can set them free. यीशु ने उनको आजाद कर सकते हैं। Are you with me? क्या आप मेरे साथ है? So when Jesus says that I am the way, the truth, and the life, जब यीशु मसीह कहते हैं कि मैं सच्चाई, मार्ग और रास्ता हूँ, truth is not an idea. और जो सच्चाई है वो एक आइडिया नहीं है, एक बुद्धि नहीं है, Okay, एक भावना नहीं है, truth is not an doctrine. और जो ट्रूथ है वो एक डॉक्ट्रिन नहीं है, Truth is not some theology, और जो ट्रूथ है वो कोई थियोलॉजी या पढ़ाई नहीं है परमेश्वर की। but truth is a person. तो जो ट्रूथ है वो एक व्यक्ति है। Are you with me? Truth is a person, जो सच्चाई है वो एक व्यक्ति है, and that is Jesus. और वह यीशु है। Are you with me? आप मेरे साथ हैं? Yes. Okay. So when we worship Him in spirit and in truth. तो जब उनको हम आराधना करते हैं तो हम उनको आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना करते हैं। Through Jesus, what He did for us on the cross. यीशु मसीह के जरिए कि उसने क्या किया, जो किया हमारे लिए क्रूस पर। Right? We enter the holy place और हम पवित्र स्थानों में चलते हैं by the blood of Jesus. यीशु मसीह के लहू के द्वारा, Right? Because He has made a way. क्योंकि उसने एक रास्ता बनाया। Right? And another verse in John chapter 17, verse 17. और एक अलग जगह पे यहाँ पे यूहन्ना के 17 वचन में, John chapter 17, verse 17. यूहन्ना के 17 वचन में It says, वह कहता है, you sanctify them with your word. और वह कहता है कि आप उनको अपने वचन के द्वारा शुद्ध करते हैं। Your word is truth. आपका वचन सच्चा है। Your word is truth. आपका वचन सच्चाई है। And who is the word? और वचन और वह सच्चाई क्या है? In the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वो वचन ही परमेश्वर था। Are you with me? क्या मेरे साथ है? Right? True worship that is born out of spirit and truth जो सच्ची आराधना जो जन्म लेती है आत्मा और सच्चाई से, is done with what Jesus has done for us on the cross. वह किया जाता है जो यीशु ने क्रूस पर हमारे लिए किया। Is this too much information for today? क्या यह बहुत ज्यादा जानकारी होगी आपके लिए आज के लिए? You can be honest. आप ईमानदारी होकर बता सकते हैं। Too much information for day one? क्या ये बहुत ज्यादा हो गया है पहले दिन के लिए? Where's my gun? Too much information. I'm just kidding. क्या ज्यादा हो गया है? आप बता सकते हैं हाँ या ना, बता सकते हैं, हाँ बोलो, no कोई problem. बात नहीं, हाँ बोलिए। आप ज्यादा है? हाँ। Okay, because the thing is, I don't want to give you too much information, overload you. तो मैं कि आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन दे के आपको पूरी तरह से ओवरलोड नहीं करना चाहता। क्या ये बहुत ज्यादा होगा आपके लिए? हाँ या ना? Okay, all right. What we'll do is we'll stop here. तो मैं क्या करूंगा, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे विराम लेंगे Okay, we'll do a quick recap of everything that was learned. और हम today. लोग जल्दी से जो भी हम सीखे हैं उसको हम देखेंगे। Okay, we'll do a recap of everything that was taught or learned. जो भी सिखाया गया उन सारी बातों को हम फिर से देखेंगे। So it is possible for you to worship anything or anyone. तो यह आपके लिए संभव हो सकता है, संभव है कि आप किसी को या किसी व्यक्ति या विशेष को या चीजों को आप आराधना कर सकते हैं। Yes, हाँ, because you will give worship to anything or anyone you consider is worthy. आप किसी भी और किसी व्यक्ति को या किसी भी चीज को आप आराधना कर सकते हैं जिसको आप मानते हैं कि वो योग्य है। Okay, it could be anything यो कोई भी चीज हो सकती है or anyone. या कोई And then we व्यक्ति। learned that what worship is. और फिर हम लोगों ने देखा कि आराधना क्या है। Worship, first point, आराधना का पहला पॉइंट क्या था? is recognizing who God is. परमेश्वर को पहचानना। Right? In recognizing, we identify and we acknowledge. और फिर हम उनको जब पहचान लेते हैं तो उनको जान लेते हैं या मान लेते हैं और फिर स्वीकार कर लेते हैं कि वो Secondly, परमेश्वर है। और दूसरा चीज, Worship is reverence for God. और आराधना परमेश्वर के लिए
हमारी श्रद्धा है। Right? We enter into his presence with utmost respect. और जब हम उसके आराधना में जाते हैं तो पूरी श्रद्धा से जाते हैं। Third point, और तीसरा बात, worship is communion with God. और परमेश्वर का तीसरा पॉइंट है आराधना परमेश्वर के साथ एक होना हो जाता है। Finally, और अंत में worship is our response to an encounter with God. और जो आराधना होती है वह परमेश्वर का के प्रति हमारा प्रति उत्तर होता है। Right? And then we learned तो फिर हम लोगों ने सीखा what happens when we worship. तो क्या होता है जब हम आराधना करते हैं। Worship transforms us. और आराधना हमें बदल देता है। Right? We saw from Psalm 115 verse 4 to 8. और हम लोगों ने वचन संहिता 115 से के 4 से 8 तक देखा। Right? People who worshipped idols or who made idols, और जो लोग जो मूर्ति को बनाते हैं या फिर जो मूर्ति बनाते हैं they become like the one they worship. तो उनकी तरह हो जाते हैं जो जिनके वो आराधना करते हैं। But we also saw that in 2 Corinthians chapter 3 और फिर दूसरी कुरिन्थियों की उसके तीसरे अध्याय में हम लोगों ने देखा that we are transformed into the image of Jesus. कि हम परमेश्वर के प्रतिरूप में स्वरूप में बदल जाते हैं। Right? And in worship we experience the presence of God. और आराधना में हम उसकी उपस्थिति का अनुभव करते हैं। And in worship और आराधना में we are empowered to rule and reign. तो हम शासन करने में और राज्य करने में हमें सामर्थ्य मिलता है। And finally, और अंत में we looked at what true worship is. और हमने देखा कि क्या सच्ची आराधना है What does it mean to worship him in spirit and in truth? और वो क्या है कि हम उनको आराधना करें आत्मा और सच्चाई में। Okay? ठीक है, So what I would like to do now तो मैं क्या करना चाहूंगा अब is open it up to see if you have any questions that you want to ask me. तो आप खुल के बताएं अगर आपके पास कोई प्रश्न है। Any questions? You can raise your hands, maybe the mic will come to you. आप अपना हाथ उठा सकते हैं, आप माइक आपके पास आएगा, आप किसी प्रकार का प्रश्न पूछ सकते हैं। If you have no questions, no problem. अगर आपके पास कोई प्रश्न नहीं है तो कोई समस्या नहीं। Yeah. When is he searching? When is he searching? He is always looking for it, bro. He is always searching. He is always looking for those who worship him in spirit and in truth. तो भाई ने प्रश्न पूछा कि कब परमेश्वर सच्चे आराधक को ढूंढता है, तो उत्तर था कि हमेशा। Right? The Bible says that the eyes of the Lord goes to and fro. तो बाइबल बताती है कि परमेश्वर का जो आंख है वो आगे पीछे लगा रहता है। Yeah. So the answer is that he's always looking for true worshippers. तो परमेश्वर हमेशा सच्चे आराधक को ढूंढता रहता है। थैंक यू। Yeah, thank you. Any other question? You have a question? Yes. Esteem can be a synonymous word with reverence. Yeah. So you honor or you respect someone who you hold in high esteem. Yes. श्रद्धा, रेवरेंस और स्टीम के बारे में बहन ने पूछा, तो भाई ने बताया कि आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टीम वर्ड भी रेवरेंस के प्रति आप इस्तेमाल कर सकते हैं। Okay. All right. I think there's no further questions. I'll stop the recording now for those who are joining us online. Thank you for joining. I will see you again tomorrow. God bless you. परमेश्वर आपको